So, welcome everyone. Welcome to Physics by Aryan. I am Aryan Mehra. So, if you don't know me, I did my master's in physics, MSc in physics from IIT Delhi in 2022. I completed last year. Then, for like 8 months, I joined a PhD in nanoscience, Center for Nanoscience in IISc for about 8 months. Okay. And now I quit my PhD and I joined one coaching institute named as Bansal Pathshala in Nagpur. Okay. I joined Bansal Pathshala in Nagpur as a JEE Advance and NEET faculty for physics. Okay. For physics, I joined like this. Now, based on my experience, I have came from IIT, then IIC, now coaching industry. Based on my experience, I will try to cover up that what the coaching industry is about and how you can join the coaching industry, and is it a good career or a bad career, or what is it? Okay. So what should be your take on this? So number one thing is, any MSc student, any MSc student can join in this industry. First of all, it does not matter either you are from IITs or either you are from NIT or आपका degree either से है, from what wherever degree you have. If you are an MSc student and you have passed your MSc degree, then you can join in this industry. This industry is quite big, काफी बड़ा industry है. काफी कोचिंग इंस्टीट्यूट इंडिया में है. देयर इज नॉट इवन अ सिंगल क्लास 11th और क्लास 12th स्टूडेंट जो कोचिंग नहीं कर रहा आज की डेट. हर क्लास 11th और क्लास 12th स्टूडेंट को कोचिंग करनी पड़ती है. दे आर डूइंग द कोचिंग. इवन फॉर द बोर्ड्स दे नीड कोचिंग. और जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट के अगर आप नंबर्स को कैलकुलेट करो तो लगभग नीट एग्जाम जो है वो 18 लाख पीपल ने लास्ट ईयर दिया. ऑलमोस्ट 18 लाख बच्चों ने नीट दिया. आप समझ सकते हैं कि 18 लाख ने दिया तो 18 लाख बच्चे ही क्लास 11th में भी होंगे. तो ऑलमोस्ट 36 लाख स्टूडेंट्स जो है ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं नीट के लिए इस टाइम पे घर बैठकर अभी, या वो किसी ना किसी कोचिंग इंडस्ट्री में है, किसी ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में वो ऑलरेडी है. लगभग 36 लाख नीट एस्पिरेंट्स अभी घर बैठकर तैयारी कर रहे हैं. सिमिलरली अगर आप जेई की बात करो तो सिमिलरली ये नंबर 10 + 10 20 लाख हो जाता है. तो ऑलमोस्ट हाफ करोड़ 50 लाख स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर आइदर नीट और जेई. सिमिलरली अगर आप बात करो कि जो जेई और नीट की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे या उन्होंने एग्जाम नहीं भी दिया, दे हैव टू गिव द बोर्ड एग्जाम्स. बोर्ड एग्जाम्स देना है, सीयूईटी एग्जाम देना है. सीयूईटी यूजी के लिए भी होता है. सो दिस इज अ क्वाइट बिग इंडस्ट्री. द नंबर ऑफ, आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग इंडस्ट्री, बट दिस इज अ वेरी नोवल इंडस्ट्री. ओके. इसको आप पैसे की नजर से नहीं देख सकते. दिस इज अ वेरी very student related industry. Okay. So industry I'm saying because it's a formal word. But अगर आप इसको इंडस्ट्री की तरह देखोगे तो एज अ टीचर योर करियर विल बी इन jeopardize. Okay, you can't behave like that. और आप ऐसा नहीं देख, that is not a good way to look at. So 50 lakh students are there who will give, are preparing at a time, and they need a good teachers. Definitely they need a good teachers. Currently in a present scenario, if you find out, still we don't have a good teachers. You can find many good YouTube channels, but still if you go on looking on into it, there are still not a good teachers available which can cover this much students. So there is a need for good physics teachers every year, not just physics teachers but chemistry and mathematics also. And there are many coaching institutions in India. So I want you to give some of the briefing that where these coaching institutes are. So there are some of the famous areas where these coaching institutes are. For example, number one comes Kota, which we all know. But other than Kota, also there is many other places. For example, if you go in North India, there is Delhi. Okay, there is Gurugram. Okay, then there is Chandigarh. So these are the hub. Then the jobs will come in Noida.
in UP, if you go, the jobs will be in Noida. Okay, if you start coming towards the South India, then the jobs will go to Hyderabad, Mumbai, Nagpur. Okay, and if you go even more towards the South Indian side, then there are few good institutions. There is a hubs in the Kerala as well, Karnataka as well. On the east side, if you see, Kolkata is there. Okay, Bhubaneswar is there. So in all the localities, there are sub cities which are semi-developed or not a metro cities, but quite good developed. So they have a quite many good institutions. So the students all around from that place comes to those cities and do the coaching there in the hostels and everything they live. Jaise Nagpur mein, in my institute, all the students around the Nagpur from 100 kilometers away from Nagpur or 200 kilometers away from Nagpur, they come to Nagpur and do the coaching because not every student can go to Kota or they don't need to go to Kota. Kota जाने की कोई जरूरत नहीं है उनको. तो वो आसपास में जो बड़े शहर है, हर स्टेट में 2 या 3 बड़े शहर है, वो शहर यूजुअली आर डेवलप्ड एज अ हब फॉर कोचिंग इंडस्ट्रीज. उनमें काफी कोचिंग इंस्टीट्यूट के हैं. तो इसमें आपको काफी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि आप कहाँ काम करना चाहते हैं. इफ यू वांट टू वर्क क्लोज टू योर होम, आप बिल्कुल अपने होम टाउन में आपको जॉब शायद नहीं मिलेगी, लेकिन क्लोज टू होम आपको जॉब मिल सकती है विद इन 2 to 3 years ऑफ योर एक्सपीरियंस. फर्स्ट जॉब के लिए आपको मे बी थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है. तो ये इंस्टीट्यूट है. लेकिन इसके अलावा इंस्टीट्यूट्स हैं कौन कौन से जो टॉप इंस्टीट्यूशंस में नाम आता है? ऑलवेज आकाश इज देयर. आकाश एंड बायजूस आर हायरिंग एस टुगेदर नाउ. आकाश और बायजूस का अगर आप हायरिंग प्रोसेस देखें तो वो एक जैसा है, वो एक साथ हायर करते हैं. तो ऑफलाइन कोचिंग के लिए आकाश में जाया जाता है, ऑनलाइन के लिए बायजूस में जाते हैं. देन देयर आर मेनी अदर इंस्टीट्यूशंस, मेनी अदर. इतने सारे नाम हैं. अगर आप लिंक्डइन पर जाकर देखें, लिंक्डइन पे जाकर देखें तो आपको बहुत से नाम मिलेंगे जो कि बहुत अच्छा अच्छा पैकेज आपको दे सकते हैं या आपको बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं. देन एलन इज देयर. ओके, रेजोनेंस इज देयर, जिनकी काफी ब्रांचेस हैं. मैं उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहा हूँ जिनकी ऑल अक्रॉस द इंडिया ब्रांचेस हैं और जहां पर आपको एज अ फिजिक्स फैकल्टी अलग अलग जगह पर जाकर काम करने का मौका मिल सकता है. कि आप अगर चूज करना चाहें कि मैं यहाँ पर नहीं यहाँ पर काम करना चाहता हूँ, तो इसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है. जैसे एलन की काफी ब्रांचेस हैं, रेजोनेंस की काफी ब्रांचेस हैं, ठीक है, आकाश की बहुत ही ब्रांचेस हैं, फिटजी है. सो अदर इज फिटजी, फिटजी इज ऑल्सो देयर. तो ये सब नाम हमने अपनी जेई की प्रिपरेशन के टाइम में सुने थे. नाउ इट इज टाइम टू सर्व एज अ टीचर. तो इस कोचिंग इंडस्ट्री में अगर आपको एंटर करना है तो एज अ अगर मैं कोचिंग इंडस्ट्री का फाउंडर हूं या ओनर हूं और मुझे टीचर को हायर करना है, तो व्हाट इज द थिंग्स दे लुक इनटू यू. सबसे पहली चीज क्या होती है जो वो देखते हैं? सबसे पहले आपका सबसे ज्यादा जो मैटर करता है, जो आपका सीवी को ही वहीं से शॉर्टलिस्ट कर दिया जाता है. सबसे पहले आपकी देखी जाती है सीवी. सीवी होता है एक रिज्यूमे काइंड ऑफ थिंग, जिसमें पता चलता है कि आपने आज तक अपनी लाइफ में क्या किया है. मोस्ट ऑफ द सीवीज रिजेक्ट हो जाती हैं डायरेक्टली, डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाती है. एक प्रोटोकॉल सिस्टम होता है जो वो फॉलो करते हैं. अगर आप उसके अंडर नहीं आते तो लगभग लगभग आपको बाहर कर दिया जाता है. तो सीवी बहुत अच्छी बननी चाहिए. सीवी बहुत अच्छी बनने के लिए क्या क्या जरूरी है? अगर आपकी सीवी में कहीं पर भी आईआईटी डिग्री है, कहीं पर भी है, इट डजेंट मैटर कि आपने इंजीनियरिंग ही आईआईटी से किया है या नहीं. अगर आपने एमएससी फ्रॉम आईआईटी किया है या आपने एमटेक फ्रॉम आईआईटी किया है, तो आपको बहुत अच्छा क्रेडिट मिलता है उस चीज की. सबसे पहली बात, मैं झूठ नहीं बोलूंगा इसमें, आईआईटी डिग्री का बहुत अच्छा क्रेडिट मिलता है. अगर आपके पास ऐसी कोई डिग्री है, अगर आपके पास एमएससी फिजिक्स आईआईटी से है, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा. ठीक है. सेकंड चीज है, अगर आईआईटी नहीं भी है तो अच्छा सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो होना चाहिए. एमएससी की बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास अच्छा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप स्टेट का सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या एनआईटी है आपके पास, जहां से आपने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है. ठीक है. मेरे केस में वो आईआईटी प्लस आईआईएससी था, तो इट वाज क्वाइट बेनिफिशियल फॉर मी टू गेट द जॉब. मेरे पास आईआईटी प्लस आईआईएससी डिग्री था, तो काफी इजीली मुझे जॉब मिल गया. लेकिन अगर आपके पास ये तीन चीजों में से नहीं है तो आपके लिए थोड़ा सा बातें मुश्किल हो जाएंगी. आपके लिए थोड़ा सा जो है
सिलेक्शन प्रोसीजर थोड़ा नहीं, मैं बोलूंगा बहुत हद तक मुश्किल हो जाएगा सिलेक्शन प्रोसीजर, ठीक है। तो सबसे पहले होता है सीवी, लेकिन आपको ये भी समझ के चलना है कि आईआईटी डिग्री इज नॉट इनफ। आईआईटी की डिग्री बहुत से लोगों के पास है आज की डेट में, आईआईटी से एमएससी बहुत से लोग कर रहे हैं, और बहुत से नहीं भी कर रहे हैं, तो काफी नंबर, अच्छा नंबर है हर साल जिसको कोचिंग इंडस्ट्री में आना है। तो अगर आपके पास ये 3 डिग्रीज नहीं है तो क्या प्रोसेस होगा, और अगर आपके पास इन तीनों में से कोई डिग्री है तो क्या प्रोसेस होगा। एक बार आपका सीवी शॉर्टलिस्ट हो जाता है, अब शॉर्टलिस्ट होगा कहाँ पर। शॉर्टलिस्ट होगा वेबसाइट्स पर, जैसे कि लिंक्डइन। लिंक्डइन पर बहुत सी जॉब्स निकलती हैं। इसके बाद आता है naukri.com, और इसके बाद आता है इंडीड। मुझे नहीं लगता कि इन 3 वेबसाइट के अलावा आपको कहीं और जाने की जरूरत है। और एक सिंगल सीवी बना लो, एक पूरा का पूरा एक सीवी बना लो, जिसके अंदर आप लिंक्डइन पे भी अप्लाई कर सकते हो, naukri.com पे भी कर सकते हो, इंडीड पे भी कर सकते हो। इन तीनों के अलावा मुझे कभी कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे तो ज्यादा कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने 5 या 6 जगह पर अप्लाई किया था, विद इन 2-3 डेज मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो आपको ये 3 जगहों पर बहुत सी अच्छी अच्छी कंपनीज की जॉब्स मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट जिनके पास बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जो आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं अगर आपको सच में टीचिंग करने में मजा आता है। तो ये तीनों पे आपको मिल जाएगी वेबसाइट पे, आपको सब कुछ ऑनलाइन अप्लाई करना है, आज की डेट में कुछ भी ऑफलाइन नहीं है, ठीक है। अब आपने जब अप्लाई किया, आपकी सीवी जो है शॉर्टलिस्ट होगी। पहली बात है, आपको पहले चेक करना है कि क्या आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट हो रही है। सीवी शॉर्टलिस्ट होने में क्या होता है कि अगर मान लो आज आपने आज अप्लाई किया, टुडे यू अप्लाइड, तो अगर आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट हो रही है तो विद इन 48 आवर्स आपको रिप्लाई आ जाएगा, जो है फर्स्ट रिप्लाई जो है आपको आ जाएगा विद इन 48 आवर्स। इससे ज्यादा टाइम मैंने कभी लगते हुए नहीं देखा। जहां से रिप्लाई आना होता है विद इन 48 आवर्स आ जाता है। अब रिप्लाई क्या आएगा, व्हाट विल बी द रिप्लाई, तो आपको एक फोन कॉल आएगा, ठीक है। आपको यूजुअली एक फोन कॉल आता है, किसका आता है, एचआर का। जो भी उस कंपनी में हायरिंग कर रहा है इंसान, लड़का या लड़की, वो आपको कॉल करेंगे और आपको बोलेंगे कि हमने आपका सीवी शॉर्टलिस्ट किया है, तो अब आपको नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जाना है या नहीं जाना है, वो आपसे कंफर्मेशन लेंगे। तो अगर आप बोलते हो यस, तो वो आपको फर्दर राउंड्स के लिए जो है टाइमिंग दे देते हैं, आपसे पूछकर कि आप कब फ्री हैं, तो आपको फर्दर राउंड्स के लिए टाइमिंग मिल जाता है, ठीक है। यहीं पर आप थोड़ी बहुत बात कर लेते हो कि हाँ मैं ऐसे इस टाइम पे फ्री हूँ, या मैं ये कर सकता हूँ इस टाइम पे। अब ये फर्दर राउंड्स क्या होते हैं, अब जैसे ही आपका सीवी शॉर्टलिस्ट हुआ, फर्दर राउंड्स तक आप पहुंचे, विद इन 2 दिन आपको कॉल आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो मतलब आपकी सीवी थोड़ी सी वीक है, आपको कुछ और करना पड़ेगा सीवी में। अब क्या कर सकते हैं वो मैं थोड़ा लेट बताऊंगा, अभी बताऊंगा कि आप सीवी में क्या कर सकते हो कि आपको ये फोन कॉल्स आने शुरू हो जाए। जब भी मैं अप्लाई कर रहा था, विद इन 2-3 आवर्स मुझे कॉल आ जाता था। अगर मैंने रात को 12-1 बजे अप्लाई किया है तो सुबह 8-9-10 बजे तक मुझे लगभग उस कोचिंग इंस्टीट्यूट से कॉल आ जाता था कि सर हम आपका फर्दर राउंड करना चाहते हैं, ठीक है। फर्दर राउंड होगा, चाहे तुम भगवान हो तब भी फर्दर राउंड तो होगा, ठीक है। अब फर्दर राउंड में क्या होता है, फर्दर राउंड में होता है सबसे पहले आपका टेस्ट। टेस्ट होता है एक, अब ये ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। मान लो आपने कहीं पर अप्लाई किया, वो आपको ये भी बोल सकते हैं कि सर आप टेस्ट देने के लिए हमारे यहाँ आ जाओ, लेकिन वो क्या है कि आप निगोशिएट कर सकते हो कि सर मैं पहले 1-2 राउंड के लिए इतना दूर चल के नहीं आ सकता। मान लो कि वो कोचिंग इंस्टीट्यूट दूर है, आप कहीं पे दूर हैं, वो कहीं पर दूर है, तो आप बोल सकते हो कि सर मैं टेस्ट ऑनलाइन देना चाहता हूँ, अगर बात आगे बढ़ती है तो मैं आ सकता हूँ इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो टेस्ट होता है एक, जिसके अंदर आपको जो भी आप रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, मान लो आपने जेई मेंस या जेई एडवांस के लिए अप्लाई किया है, या नीट के लिए अप्लाई किया है, तो उस लेवल के उस टेस्ट में क्वेश्चंस होंगे। अब वो टेस्ट आपको कंप्लीट करना होता है, उसमें मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स जो एक्सपेक्ट करते हैं कि 50% स्कोर तो आपका होना चाहिए। बहुत अच्छा स्कोर वो नहीं एक्सपेक्ट करते, इससे डरने की बात नहीं है। टेस्ट होता है एक, मैंने कभी टेस्ट नहीं दिया, दे नेवर आस्क्ड मी टू गिव द टेस्ट। यूजुअली क्या होता है, क्योंकि मेरा सीवी बहुत ही स्ट्रांग था, तो मेरा सिर्फ एक इंटरव्यू हुआ था 20 मिनट्स के लिए। 20 मिनट्स के लिए इंटरव्यू हुआ था, दैट्स इट, और मुझे जॉब मिल गया था, दैट्स इट। मैंने इसके अलावा कुछ नहीं किया। बट मैं आपको एक यूजुअल प्रोसेस बता रहा हूँ कि होता क्या है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपका भी इतना स्ट्रांग सीवी नहीं होगा। आप एक एवरेज इंसान की तरह इस कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर घुस आना चाहते हैं, ठीक है।
तो आपका एक टेस्ट होगा। अब इस टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी एक टेस्ट हो गया। अब इस टेस्ट में अगर आप 50% से ज्यादा स्कोर करते हैं, या फिर उतने कुछ आपके अलावा जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनसे ज्यादा अगर आप अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, तो आपका अगला राउंड होगा जिसको बोलते हैं डेमो। डेमो होता है जहां पर आपको एक कंसेप्ट समझाना होता है। ठीक है। अब मोस्टली कोचिंग इंस्टीट्यूट ये डेमो ऑनलाइन लेते हैं। ठीक है, आपको कैमरा वैमरा लेकर पेन पेपर के ऊपर आप समझा सकते हैं, या अगर आपके पास टैबलेट है तो आप वो उसके ऊपर समझा सकते हैं, जैसे मैं अभी आपको समझा रहा हूँ वैसे ही एक क्लास लेना होता है। अगर आपके पास ऑनलाइन कोई सेटअप नहीं है, सेटअप मतलब कि आप पेन पेपर तो कम से कम आप इंतजाम कर ही सकते हैं, और आप कैमरा एक अच्छे एंगल पर रखकर डेमो जो है वो आपके सामने एक उनके इंस्टीट्यूट का इंसान बैठा होगा और आपको डेमो देना है। आपको वो टॉपिक बता देंगे, आपको उसके ऊपर लेक्चर देने हैं। 10 मिनट का लेक्चर वो आपका सुनेंगे। उसके बाद आपके आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करने लग जाएंगे, उसी टॉपिक के ऊपर मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन पूछने लग जाएंगे। अगर आपकी उस क्वेश्चंस में अप्रोच सही है, या आप समझ पा रहे हैं उनकी क्वेश्चंस को, वो क्वेश्चंस इतने मुश्किल भी होते हैं कभी कभी कि क्वेश्चन समझना ही बहुत बढ़िया बात होती है, क्योंकि वो उनको इतना आइडिया नहीं होता कि क्वेश्चंस को फ्रेम कैसे करना है। मोस्टली मैंने देखा है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो इंटरव्यू लेने वाले लोग होते हैं उनको इतना आइडिया नहीं होता, क्योंकि उन्होंने खुद मास्टर्स नहीं किया है। आप लोग मास्टर्स इन फिजिक्स हैं, तो आप समझ के चलिए कि आपके पास फिजिक्स में उनसे बहुत बढ़िया नॉलेज, ज्यादा नॉलेज, अच्छी नॉलेज है। तो आप अपनी एजुकेशन से निकलकर उनके लेवल पर जाकर सोचना है आपको, क्योंकि क्वेश्चंस उसी लेवल के होते हैं। वो बेसिक लेवल पूछ रहे होते हैं या छोटे लेवल की बातें पूछ रहे होते हैं, तो वहां पर आपको कर्ल, डाइवर्जेंस, ये सब बातों में नहीं घुसना है। अगर आपसे कोई पूछ ले कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, तो आप ये मत बोलने लग जाओ कि उसका कर्ल जो है 0 होता है, क्योंकि ये सब बातें बीएससी एमएससी की है, ये क्लास 11 12 की बातें नहीं है ये। ठीक है, तो डेमो होगा एक ऑनलाइन। अगर वहां पर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, मान लो, अब ये डेमो ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन भी हो सकता है। ठीक है, आपको ये भी बोल सकते हैं कि सर हमारे इंस्टीट्यूट में आओ और यहाँ पर आके पढ़ा कर दिखाओ। ठीक है, अगर ये होता है तो फाइनल राउंड इंटरव्यू होती है फिर। अब उस फाइनल राउंड इंटरव्यू में क्या होता है, वो बेसिकली क्या होता है कि आपसे सैलरी डिस्कस होगी। मतलब मान लो कि अगर आपने डेमो क्रॉस कर लिया है, तो समझिए कि वो आपको पसंद कर रहे हैं, बस आपसे निगोशिएट करना चाहते हैं। तो सैलरी आपकी डिस्कस की जाएगी। ठीक है, आपको रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई जाएगी कि आपका क्या काम होगा। ठीक है, और आपसे कुछ आइडियाज लिए जाएंगे। ठीक है, आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिससे वो आइडिया लगाएंगे कि कैन दिस गाय हैंडल द सिचुएशन, या जो हम चाहते हैं क्या इसमें वो है। क्योंकि आप समझिए हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में कुछ एक ना एक प्रॉब्लम चल रही है। मतलब वो उनको उनको जरूरत है किसी एक पर्टिकुलर चीज की, तभी तो वो हायरिंग कर रहे हैं। ठीक है, अगर उनको उनके पास 2 फिजिक्स फैकल्टी हैं, उनको तीसरा चाहिए, तो हो सकता है कि उनकी आपसे कोई और एक्सपेक्टेशन हो। मान लो उनके पास कोई फिजिक्स फैकल्टी नहीं है और उनको आप ही चाहिए, तो आपसे कुछ और एक्सपेक्टेशन होगी। ठीक है, तो वो अपनी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से देखना चाहते हैं कि क्या आप सही हैं, क्या आप सही कैंडिडेट हैं। इस इंटरव्यू में आपसे बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि क्या आपने कभी पहले पढ़ाया है, क्या आप बच्चों को हैंडल कर सकते हैं। ऐसे ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे कि बेसिकली वो जानना चाहते हैं, वो आपसे इंश्योरेंस लेना चाहते हैं। एक तरह से आप अगर किसी को सैलरी देना चाहते हो, तो आप ये कंफर्म करना चाहते हो कि क्या ये इंसान कर पाएगा, या मेरा टाइम वेस्ट होगा, मेरा पैसा वेस्ट होगा। ठीक है, बस वो यही ट्रस्ट देखना है, क्या आप उनको ट्रस्ट दिला सकते हो इस इंटरव्यू में या नहीं। ठीक है, तो ये 3 राउंड्स होते हैं यूजुअली किसी भी के लिए भी। तो सबसे पहले सीवी सिलेक्शन, उसके बाद टेस्ट, फिर डेमो, और फिर इंटरव्यू। 4 राउंड्स होते हैं। ना मेरा सीवी सिलेक्शन डायरेक्टली हो गया था, ना मैंने टेस्ट दिया, ना मैंने डेमो दिया, मेरा सीधा हुआ इंटरव्यू। इंटरव्यू में मैंने 10 मिनट का डेमो दिया था, और 10 मिनट मेरी ये सब बातें हुई। पहले 10 मिनट मैंने डेमो दिया, और अगले 10 मिनट में मेरी सैलरी वगैरह डिस्कस हो गई। ठीक है, 20 मिनट 30 मिनट का इंटरव्यू में इट वॉज ऑल डन। ठीक है, अब बात करते हैं एक एक स्टेप की। ठीक है, तो सबसे पहले इनको कैसे अच्छे से करना है, उससे पहले हम जो मेन आपके मन में कंसर्न होगा कि सैलरी पैकेजेस क्या रहते हैं। ठीक है, आप अपनी फैमिली को चलाना चाहते हैं, आप इनकम अर्न करना चाहते हैं। ठीक है, तो सैलरी पैकेजेस क्या रहेंगे इस फील्ड में, इस इंडस्ट्री में। अब मान के चलिए कि आपने सिर्फ एमएससी किया है, चाहे आपने कहीं से भी किया है, मान लेते हैं आईआईटी से किया है। ठीक है, आपने एमएससी किया आईआईटी से, और
आपने के पास जीरो टीचिंग एक्सपीरियंस है, आपको पढ़ाना आता ही नहीं है या आपने कभी पढ़ाया ही नहीं है, आता होगा लेकिन पढ़ाया नहीं है, ठीक है, कोई जीरो टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो यूजुअली मैं क्या रिकमेंड करता हूं ऐसे कैंडिडेट्स के लिए कि आप जो है बड़ी कोचिंग इंडस्ट्रीज में अप्लाई करो, जैसे कि आकाश, ठीक है, बायजूस या एलन। क्यों अप्लाई करो? क्योंकि वहां पर दो तरह के टीचर्स की जरूरत होती है। एक फिजिक्स फैकल्टी की, फिजिक्स फैकल्टी कौन होता है? जो कि मेन टीचर होता है उस इंस्टीट्यूट का, जिसको सारा का सारा बैच रन करना है। वो इंडिपेंडेंटली क्लास लेगा, इंडिपेंडेंटली पूरा सिलेबस कवर कराएगा, सारे टेस्ट बनाएगा, सब कुछ वो इंडिपेंडेंटली करेगा। फिजिक्स का वो करता धरता है, 2 या 3 बैचेस के लिए वही आदमी है जिसने संभालना है सब कुछ फिजिक्स के लिए। ये होते हैं मेन फैकल्टीज। अगर आपके पास एमएससी डिग्री कहीं से भी है लेकिन आपके पास जीरो टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो आप टॉप इंस्टीट्यूट्स के फैकल्टी तो नहीं बन सकते। जीरो टीचिंग एक्सपीरियंस में आप फैकल्टी नहीं बन पाओ। लेकिन ऐसे इंस्टीट्यूट्स में एक और तरह की जॉब होती है, जो होती है जूनियर टीचर्स की या जूनियर फैकल्टी की, जिनका मेन काम क्या होता है? डाउट सॉल्विंग सेशंस। जो मेरे मोस्ट ऑफ द बैचमेट्स थे आईआईटी के, उनके पास जीरो टीचिंग एक्सपीरियंस था, तो उन्होंने डाउट सॉल्विंग सेशन टीचर की तरह ज्वाइन किया। इसमें क्या होता है कि आप पढ़ा तो कोई और रहा है, लेकिन आपका मेजर काम क्या है? स्टूडेंट्स के डाउट्स को लेना। वहां पर आपका एक ऑफिस होगा या एक टेबल होगा, जहां पर बच्चे एक डेडिकेटेड टाइम पर आकर जो है आपसे डाउट सॉल्व करेंगे। इसके अलावा आपकी कुछ ट्रेनिंग भी होगी, एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होता है 6 महीने का। कहीं कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में 6 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होता है। आपको रहने खाना सब देते हैं वो, और आपको साथ साथ में ट्रेनिंग करवाते हैं कि आपको ऐसे पढ़ाना है, ठीक है, ये हमारा प्रोटोकॉल्स है, ये सब है। तो जूनियर फैकल्टी पे अगर आप जाते हैं, ठीक है, एकदम जूनियर फैकल्टी पे जाते हैं, तो आपका पैकेज जो है वो 8 लाख पर एनम तक जा सकता है, ठीक है। ये स्टार्ट होता है 6 लाख पर एनम से। 50,000 रुपए पर महीने से लेकर 8 लाख रुपए पर महीने, सॉरी, एनुअल तक जाता है। 6 to 8 लाख जाता है जूनियर फैकल्टीज का, प्रोवाइडेड कि आपके पास डिग्री जो है आईआईटी से या एनआईटी से है। ये मैं आईआईटी और एनआईटी वालों के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप आईआईटी या एनआईटी के से हैं, फिर आपका पैकेज 6 से 8 लाख रुपए तक जाएगा। अगर आप छोटी यूनिवर्सिटीज से हैं, मान लो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से हैं, ठीक है, या उससे भी छोटी यूनिवर्सिटी से हैं, लेकिन आपका कहीं कैसे ना कैसे सिलेक्शन हो गया है, तो आपका पैकेज 4 to 6 जाएगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 4 to 6 जाएगा, जो कि बहुत ही कम इनकम है। तो आपके लिए तो ये इतना कोचिंग इंडस्ट्री स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आपको बहुत अच्छी नहीं लगेगी। इन द वेरी बिगिनिंग हो सकता है कि आपको इतनी अच्छी ना लगे, लेकिन अगर आप आईआईटी एनआईटी से हैं, तो आपका वेरी बिगिनिंग में जूनियर फैकल्टी के टाइप में इतना हो सकता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि विद इन विदाउट, मतलब कैसे वेरी बिगिनिंग में ही आपको इस पैकेज को काफी ऊपर तक लेकर जाना है, ठीक है। अभी आई विल टॉक कैसे मैंने किया, ठीक है। ये हो गई बात। अब अगर मान लीजिए कि आपने 2 साल, 3 साल या 1 साल, 1 से 3 साल, इससे ज्यादा तो मुझे लगता है आप नहीं कर पाओ, 1 से 3 साल तो मैक्सिमम ऑनलाइन टीच किया है या ऑफलाइन टीच किया है या कुछ भी टीच किया है, जैसे मैं कर रहा हूँ पिछले 3 साल से। आई एम टीचिंग, मेरे पास सब कुछ है, आई कैन शो द रिजल्ट्स। मैंने अपनी इंटरव्यू से जस्ट पहले उनको सिर्फ एक रिजल्ट्स दिखा दिए थे कि लास्ट टाइम मेरे कितने स्टूडेंट्स का जैम क्वालिफाई हुआ। और जो फाउंडर ऑफ माय इंस्टीट्यूट है, उन्होंने भी एमएससी मैथमेटिक्स किया है आईआईटी खड़गपुर से, तो उनको पता था कि जैम क्या होता है। तो आपके पास अगर कुछ ऑनलाइन एक्सपीरियंस है या फिर आपका प्रेजेंस है ऑनलाइन, इसीलिए मैं बोल रहा था, एक काफी सेशंस में मैं बोल चुका हूँ कि ऑनलाइन प्रेजेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं आपका नाम सर्च करता हूँ गूगल पर, तो अगर आप एज अ टीचर वहां पर दिख रहे हो, क्योंकि हर कोचिंग इंडस्ट्री यही करेगी, सबसे पहले आपको सर्च करेगी। अगर आप वहां पर एज अ टीचर दिख रहे हो, मान लो आपका यूट्यूब चैनल है, ठीक है, मान लो आपका कोई टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, आप पढ़ा रहे हो, कुछ ना कुछ पढ़ा रहे हो, क्लास 11 12 को पढ़ा रहे हो सकता है आपकी वेबसाइट हो सकता है आपका ऐप हो सकता है आपने सिर्फ एक वेबसाइट बनाई है जिसके ऊपर पीवाईक्यू क्वेश्चंस ही दे रहे हो, सिर्फ कुछ कुछ भी कर रहे हो आप ऑनलाइन, ठीक है, तो वो आप एज अ एक्सपीरियंस आपके अंदर ऐड हो जाता है।
जैसे मेरे केस में क्या ऐड हुआ कि मैं 3 साल से IIT जैम, CSR नेट, गेट वगैरह की कोचिंग दे रहा हूँ, तो वो दिखता है, दैट इज विजिबल, क्वाइट विजिबल, ऑनलाइन प्रेजेंस है। जब भी आप सर्च करते हैं, आप अपने सीवी में लिख सकते हैं ना। आप जैसे ही अपने सीवी में लिखा, तो आपकी सीवी में अगर डिग्री इतनी अच्छी नहीं भी है, मान लो आपकी डिग्री IIT से नहीं है, लेकिन आपके पास ऑनलाइन एक्सपीरियंस है, तो आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट हो जाएगी, आप आगे राउंड में चले जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने ट्रस्ट बिल्ड कर दिया, आपने ये प्रूव कर दिया कि आप पढ़ा सकते हो। ठीक है, अगर आपका यूट्यूब चैनल है, तो वो कम से कम तो आपकी वीडियो का 10 मिनट का तो जरूर देखेंगे, 10 मिनट वीडियो आपकी जरूर देखी जाएगी कि आप कैसे पढ़ा रहे हो। तो आप बहुत ध्यान रखिए कि आप कैसे पढ़ा रहे हो। यूट्यूब पे आप रैंडमली आप अगर वीडियोस डालने लग जाओगे, तो आपके अगेंस्ट भी जा सकता है वो। ठीक है, तो कैसे पढ़ा रहे हो और कितने व्यूज आ रहे हैं, बच्चे क्या कमेंट्स कर रहे हैं, ये सब मैटर करता है। ठीक है, अगर आपका ऑनलाइन प्रेजेंस है, तो अगर आपने एज सच नहीं भी पढ़ाया है ऑफलाइन में, तो तब भी आपका 1 to 3 ईयर एक्सपीरियंस के इक्वल उसको माना जाता है। इट इज इक्विवेलेंट टू 1 to 3 ईयर्स। ऐसा माना जाता है कि हाँ, आपने जितने भी साल ऑनलाइन पढ़ाया है, चाहे आपने डिग्री के साथ ही पढ़ाया है, तब भी उसको एक्सपीरियंस की तरह माना जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आपके पास अभी जीरो एक्सपीरियंस था। ठीक है, और आपकी डिग्री जो है नॉर्मल कॉलेज से है। आपका पैकेज जो इनिशियली लगा वो था 6 lakhs पर एनम। तो 50,000 रुपये महीने के लिए क्या काम, इतनी मेहनत करना। ठीक है, लेकिन मैं आपको इसकी ग्रोथ के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। मान लीजिए कि आपने 1 साल सिर्फ 1 ईयर अच्छे से पढ़ाया है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर अच्छे से पढ़ाया है। अगले साल 30% तक हाइक लेना कोई बड़ी बात नहीं। 30% तो एक जेन्युइन अमाउंट है, बहुत ही नॉर्मल नंबर है। क्योंकि 1 साल में आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट को पता चल जाता है कि क्या ये इंसान या ये लड़का या लड़की पढ़ा सकता है या नहीं पढ़ा सकता। अगर आप में सही में पढ़ाने का मन है, डेडिकेशन है, तो आप अच्छा ही पढ़ाएंगे, कोई उसमें डाउट नहीं है। वो डरने वाली बात नहीं है। आप थोड़ा सीखेंगे, एक दिन आप गलत पढ़ाएंगे, अगले दिन आप ठीक करेंगे, तीसरे दिन फिर गलत, चौथे दिन फिर सही। हो सकता है इतना जब भी आप नया नया टीचिंग शुरू करते हैं, तो आप सीखते भी ज्यादा है। लेकिन अगर आपने ठीक पढ़ाया, 1 साल बच्चों को मजा आ रहा है, तो आपका 30% हाइक तो बहुत ही ईजी है। 30% हाइक का लगभग मतलब हो जाता है कि आप नेक्स्ट ईयर जो है 8 लाख पर एनम तक जाएंगे, इजिली जाएंगे। ठीक है, दूसरे साल के बाद आप कोचिंग इंस्टीट्यूट चेंज कर सकते हैं और आराम से 12 लाख पर एनम पर आ सकते हैं। ठीक है, आप आराम से 12 लाख पर एनम पर आ सकते हैं। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ठीक है, तो ये इतना बात हो गया। अब अगर आप 2 साल, एक मतलब आपने आज कोचिंग इंडस्ट्री अगर ज्वाइन करते हो, तो 2 साल के अंदर अंदर, डजेंट मैटर आप कौन से इंस्टीट्यूट से थे, डजेंट मैटर आपने कैसा आप तक पढ़ाया है, लेकिन एक बार अगर आप 6 लाख पर एनम पर भी एंटर करते हो, तो आप इजिली टू 12 लाख पर एनम यानी कि 1 लाख पर मंथ पर जा सकते हो। इट इज अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। अगर आपका अगर आपकी आपने सही में इतने अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई नहीं किया है, फिर भी अगर आपको बहुत अच्छा जॉब चाहिए, तो 1 लाख पर मंथ आई फील इज अ गुड जॉब। आप क्या बोलते हो? इज इट अ गुड सैलरी और अ बैड सैलरी? 1 लाख पर मंथ आफ्टर 2 years मीन्स एट द एज ऑफ 25। बट वट इज योर ओपिनियन? मुझे भी कुछ बताओ, क्या लगता है आपको? इज इट कम है, ज्यादा है, क्या है? कम है? It is quite good. इट इज क्वाइट गुड, राइट? बहुत बुरा तो नहीं है ये, मतलब डिसेंट है। आप बोल सकते हैं कि अच्छा है, घर चल सकता है किसी भी जगह पर बढ़िया से। ठीक है, Decent, हाँ, decent package है सर. डिसेंट पैकेज है, कोई बुरा Yes, पैकेज नहीं है। sufficient है।
है ना। मैं इसको बुरा नहीं बोलूंगा, बहुत बढ़िया भी नहीं बोलूंगा कि बहुत आपने तीर मान लिया, लेकिन बुरा भी नहीं बोलेंगे। डिसेंट पैकेज है, अच्छा पैकेज है। अब मान लीजिए रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, अगर हो सकता है कि आपको सीखने में 6-8 महीने ज्यादा लग गए, हो सकता है कि आप, क्योंकि आपने जस्ट टीच करना शुरू किया है, आप अपने ऊपर कितना ही प्रेशर डालोगे, आपको सीखने के लिए भी टाइम चाहिए। तो हो सकता है कि 2 की जगह ये 3 साल लग जाए, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे आप। 2 से 3 लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे आपको 12 लाख पर एनम तक पहुंचने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर यही आपके पास ऑलरेडी 1 से 3 इयर्स ऑनलाइन का एक्सपीरियंस है, तो आपकी जो डायरेक्ट एंट्री होगी वो 12 से होगी। डायरेक्ट एंट्री 12 से होगी, ठीक है, लगभग लगभग 12 से होगी, ठीक है। तो मेरी थोड़ी सी इससे ज्यादा है एंट्री लेवल पर, ठीक है। ऑलमोस्ट इन हैंड इज, दिस इज ऑलमोस्ट माई इन हैंड, नॉट ऑलमोस्ट, इट इज माई इन हैंड, ठीक है। इट इज एट एंट्री लेवल, आई एम टेलिंग यू अबाउट एंट्री लेवल, जस्ट फ्रॉम द वेरी डे वन। अगर आपका ऑनलाइन में कुछ टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो आपने क्या किया, उससे आपने 2 से 3 साल बचा लिए अपनी लाइफ के, 2 से 3 साल बचा लिए, और कुछ नहीं। अगर आपने नहीं भी किया तो कोई डरने की बात नहीं है, आपके पास लाइफ काफी बड़ी है, आप अभी भी स्टार्ट करना चाहें। उसके बाद में आपकी जो गेम है, दैट इज इंटायरली कि आप स्टूडेंट्स के अंदर कितना पॉपुलर हो रहे हैं, आप कितने अच्छे टीचर हैं, ठीक है। स्टूडेंट पॉपुलैरिटी, गुड टीचर, आप कितना अच्छा कंसेप्ट बना पा रहे हैं। अगर आप सच में 2 या 3 सालों में जेईई एडवांस के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है, आपको, आपने जो बेसिक बेसिक बुक्स हैं, आपको वो सच में करने में मजा आता है, आप उन क्वेश्चंस को समझा भी अच्छे से पाते हैं, आपके पास हर एक टॉपिक के लिए रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, आपने 2 से 3 साल में इतना काम कर लिया है, तो आपका वहां से कितना पैकेज चलता चला जाएगा वो आप समझ सकते हैं कि 5 to 6 ईयर एक्सपीरियंस वाले टीचर्स को 22 मिल रहा है, 22 LPA। मोर देन 8 ईयर एक्सपीरियंस वालों को 30+ मिल रहा है, ठीक है। एक पॉइंट के बाद जाने के बाद सैलरीज ऑलमोस्ट सेम फिक्स हो जाती है, 35 के आगे जाना बहुत मुश्किल है। इंडिया में 30 लाख पर एनम के आगे जाना इंडिया में किसी भी जॉब में बहुत मुश्किल है, ठीक है। 30 तक जाना इज फिर भी पॉसिबल है इंडिया में, ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा सैलरीज किसी भी इंस्टीट्यूट की औकात नहीं है कि आप इसको इतनी सैलरीज दे सके, एक टीचर को इतनी दे सके। लेकिन मुझे लगता है कि 30 lakhs इन 5-6 ईयर्स, मतलब आपकी 30 ईयर की एज में, अगर आप मान लीजिए 20-25 लाख रुपीज पर मंथ पर ईयर कमा रहे हैं, तो इट इज, किसी भी इंडस्ट्री में इतना, इससे ज्यादा आप नहीं जा सकते, किसी भी इंडस्ट्री में नहीं जा सकते। चाहे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, तो एक लिमिट के बाद वो भी रुक जाता है। अगर आप इंडिया में ही रहते हैं तो इंडिया, एक लिमिट के बाद वहां पर भी सैलरी सेचुरेट हो जाती है। तो अगर आप सच में 2 या 3 साल में ये कर पा रहे हैं, और आप तभी कर पाएंगे जब आप सच में टीचिंग के लिए पैशनेट हैं। अगर आपको टीचिंग पसंद है, अगर आपको टीचिंग नहीं पसंद लेकिन आप बस और कुछ नहीं है तो टीचर बन जाते हैं वाली अप्रोच से आओगे, तो मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये इंडस्ट्री बहुत ही रूथलेस है, आपको बहुत तंग करेगी, ठीक है। तब आपको बहुत ही कम सैलरीज पर काम करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत से इंडिया में टीचर्स हैं जो बीएड करके प्राइवेट कॉलेजेस में 15 से 20 हजार पे काम कर रहे हैं। तो आपको ये बात समझनी है कि आपकी आंखों में पैशन दिख जाता है टीचिंग के लिए, और जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो आप कितना बोल्ड आंसर्स दे रहे हैं, वो उसी से रिफ्लेक्ट होता है कि आप टीचिंग कितना अच्छे से कर सकते हैं, आपको टीचिंग में कितना कॉन्फिडेंस है। तो जब आप 2 या 3 साल बाद किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं, तो वहीं से उनको क्लियर हो जाएगा कि ये किस लेवल का टीचर हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये बात समझनी है, इस बात को आपको क्लियर करना है कि इस इंडस्ट्री में आप तभी आइए जब सच में टीचिंग आपको अच्छी लगती है। अगर आपको टीचिंग अच्छी नहीं लगती, तो आजकल ना तो स्टूडेंट्स पागल है ना कोचिंग वाले पागल, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत अच्छी खासी फीस दे रहे हैं, तो वो आपसे बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, और स्टूडेंट्स आपको क्लास में ही बेइज्जत कर देंगे, ठीक है। बहुत से ऐसे टीचर्स मैंने देखे हैं जो कि ऐसे घुसे हैं। तो आपका बहुत अच्छा करिश्मा होना चाहिए, एक बहुत अच्छा रोब होना चाहिए कि आपको टीचिंग आती है भाई, या मुझे टीचिंग करना पसंद है, ठीक है। तो तभी आप इस इंडस्ट्री में आइए, आपकी बहुत रिस्पेक्ट होगी, आपकी सैलरीज बहुत अच्छे से इंक्रीज होंगी। तो ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप अभी किसी भी टाइम पर हैं, मान लीजिए आपकी एमएससी हो गई है, या आप बीएससी में हैं, या बीएससी से एमएससी में जा रहे हैं, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर आप हैं, तो आज से कोशिश करिए, तुरंत कोशिश करिए कि आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस हो, ऑनलाइन प्रेजेंस इन टर्म्स ऑफ टीचिंग।
टीचिंग में नहीं भी है तो कुछ भी ऑनलाइन प्रेजेंस हो, क्योंकि इन नेक्स्ट 10 years एवरीवन विल बी कंटेंट क्रिएटर। अगले 10 सालों में हर कोई कंटेंट क्रिएटर होगा, और अगर आप नहीं होंगे तो आपको बहुत इजीली लोग रिप्लेस कर देंगे। फिर आपने चाहे कहीं से भी डिग्रीज किया हो, ठीक है, चाहे आप आईएएस ही क्यों ना हो, आईएएस भी आजकल ऑनलाइन प्रेजेंस बना रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है बहुत ही ईजी हो जाता है, इतना ईजी हो जाता है कि आप टेस्ट वेस्ट सब सारा जो है उड़ जाता है बीच में से। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मान लो कि भाई हमें स्टार्ट करना है इस कोचिंग इंडस्ट्री के लिए, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहला आपका काम होना चाहिए कि आपको कोशिश करनी है कि ज्वाइन गुड एकेडमिक्स। मतलब कि अगर आपके पास अभी भी मौका है, अगर तो आपकी एमएससी हो गई है तो फिर बात अलग है, लेकिन अगर आप भी आपके पास अभी भी मौका है, मान लीजिए आपकी एमएससी हो गई है, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप गेट वगैरह दे दो और एमटेक के लिए आईआईटी में चले जाओ। ठीक है, एमटेक के लिए किसी भी आईआईटी में चले जाओ। अगर आपको 2 साल का एमटेक करने को मिल गया तो बढ़िया, उसके बाद भी अच्छी जॉब्स मिल सकते हैं आपको। नहीं भी तो आपका कोचिंग इंडस्ट्री में एक बहुत अच्छा एंट्री हो जाएगा, अगर आपका आईआईटी टैग लग जाता है। ठीक है, और अगर आपने एमएससी नहीं किया है तो कोशिश करो एमएससी ही आईआईटी से करो। ठीक है, और अगर आपने एमएससी कर लिया है, अब आप और डिग्री करने की बिल्कुल हालत में नहीं हो, तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो ज्वाइन गुड एकेडमिक्स इज द नंबर 1 स्टेप। उसके लिए आप प्रिपेयर करो। अगर आप नहीं कर सकते तो सेकंड, मतलब कर भी सकते हो तो सेकंड क्या होगा कि स्टार्ट ऑनलाइन प्रेजेंस फ्रॉम राइट नाउ। ऑनलाइन प्रेजेंस अभी से बनाओ। कुछ आप यूट्यूब पे पढ़ाओ, कुछ आपका एक आध छोटा मोटा वेबसाइट होना चाहिए, समथिंग शुड बी देयर। तो आपको वो तभी बनाओ जब आपको रियल में पैशन आ रहा है, आपको आइडियाज आ रहे हैं, कुछ आपके दिमाग में आइडियाज हैं कि हाँ मैं ये ऑनलाइन कर सकता हूँ, या मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जेई के लिए ये चीज की मिसिंग है, ये चीज मिसिंग है। उसका सबसे इजी तरीका मैं आपको बताऊं, तो आपको एक ऐसा चैनल बनाइए टेलीग्राम पर जहां पर आप फिजिक्स की बुक्स दे सकें। किसको? जेई को। जेई की बुक्स बना सकें। अगर आपके उस चैनल में 2 से 5 हजार स्टूडेंट्स भी एडिड हैं, तो आपका ऑनलाइन प्रेजेंस हो गया। फिर आपका मतलब आप आपके साथ 2 से 5 हजार स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, फिर आप उनके साथ कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप उनको पढ़ाना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इनिशियली आपको ऑडियंस चाहिए होती है कि आप यूट्यूब चैनल पे वीडियो डालो तो कम से कम 1 हजार 2 हजार लोग तो हों देखने के लिए। कैसे कोई, अगर आप आज पढ़ाना शुरू करें तो क्यों कोई कोई वीडियो आपकी देखेगा जाकर? वो तभी देखेगा जब आपके पास ऑलरेडी 2 से 5 हजार लोग हैं, उनके पास अगर आप जाकर वीडियो बेचते हैं तो वो देखेंगे। आप फिर पूरा पूरा कोर्स भी पढ़ा सकते हो, आसानी से पढ़ा सकते हो, लेकिन इनिशियली 2 से 5 हजार लोगों की जरूरत होती है, और जेई में 2 से 5 हजार लोगों का मिलना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। अगर आप आज भी किसी भी लाइब्रेरी में चले जाओ, वहां पर आपको बहुत सी अच्छी अच्छी बुक्स मिल जाएंगी जेई की। आपको 10 दिन लगेंगे वो सारी बुक्स को स्कैन करने में, सिर्फ 10 दिन लगेंगे, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। 10 दिन लगेंगे स्कैन करने में और वो पीडीएफ सेंड करने में, बस बात खत्म। ये बहुत ही गलत तरीका है, लेकिन अच्छा आपको बिगिनिंग स्टार्ट कर सकता है। मैं पायरेसी नहीं प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज दिस इज समथिंग विच पीपल आर डूइंग। ओके, तो इससे स्टूडेंट का भी बेनिफिट हो जाता है, और मेरे हिसाब से ऑथर का भी बेनिफिट होता है। जब जब भी कोई नई बुक आती है मार्केट में जिसका पीडीएफ अवेलेबल होता है, तो बच्चा उस बुक को बहुत इजीली खरीदता है। ठीक है, बहुत सी ऐसी जेई की बुक्स हैं जिनके बारे में स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है, और लोग एचसी वर्मा ही खरीदते चले जा रहे हैं। उस एचसी वर्मा से भी बेटर बुक अवेलेबल है। ठीक है, तो आप अगर उन बुक्स का पीडीएफ भेज सको तो बहुत अच्छा होगा। हो सकता है कि आप डीपीपी शीट्स बना सको, हर टॉपिक के लिए अगर आप डीपीपी शीट्स बनाकर अपने चैनल में डाल दो, खुद बना लो, अलग अलग जगह से स्क्रीनशॉट लेकर असाइनमेंट्स बनाकर, तो कुछ भी आप करो जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज एक्चुअल में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये आपका होगा ऑनलाइन प्रेजेंस। ठीक है, ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत जरूरी है। थर्ड, अपने कंसेप्ट के ऊपर काम करो। जब तक आपके कंसेप्ट अच्छे नहीं है आप एक अच्छे टीचर नहीं बन सकते। अब कंसेप्ट के ऊपर काम करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको पढ़ना है, कितना ही पढ़ पाओगे, ज्यादा नहीं पढ़ पाओगे। कंसेप्ट के ऊपर काम करने का सबसे बढ़िया तरीका है, एक बुक आती है 120 years जेई मेंस। बहुत ही सस्ती सी किताब है, 500 रुपए की किताब है, दिशा वालों की किताब है ये। इसमें हर टॉपिक वाइज 120 साल के जेई मेंस के क्वेश्चंस डिवाइडेड है। मुझे लगता है कि अगर आप क्लास 11th और 12th के लिए ये किताब को खत्म कर लेते हैं, अच्छे से हर क्वेश्चन को समझ कर कंप्लीट कर देते हैं,
तो आपको जितने भी कंसेप्ट चाहिए इस कोचिंग इंडस्ट्री में आने के लिए आपके पास सारे होंगे। इसके अलावा आपको कोई बुक पढ़ने की, कोई दोबारा एचसी वर्मा एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ इस बुक को अच्छे से कंप्लीट कर देते हैं, बस दैट्स इट, तो आपका हर एक टेस्ट भी क्वालिफाई हो जाएगा, आपकी हर एक इंटरव्यू भी क्वालिफाई हो जाएगी, ठीक है, और आपको अच्छे से आसानी से जॉब मिल जाएगी। अगर आप सही में सिंसियर हो और आप इस कोचिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हो, मतलब आप इसलिए आना चाहते हो क्योंकि आप अच्छा टीचर बनना चाहते हो, तो आप इस बुक को कर लीजिए। आपका नीट का भी पार्ट हो जाएगा। जेईई एडवांस तक जाने की आपको इनिशियली जरूरत नहीं है, ठीक है। इनिशियली ये कोशिश मत करना कि मुझे जेईई एडवांस तक जाना है, ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, कम से कम मुझे भी 1 आध साल लग गया है उसके लिए, ठीक है। तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा टीचिंग चाहिए, थोड़ा जेईई मेंस का लेवल चाहिए, फिर आप जेईई एडवांस तक पहुंच जाओगे। तो ये बुक मेरे हिसाब से इनफ रहेगी। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर करने की कोशिश करोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है, और आपको लगेगा कि ये तो इसमें जा ही नहीं सकते, ठीक है। और चौथा क्या है, अप्लाई फ्रॉम नाउ। आज से अप्लाई करना शुरू कर दो। मान लो कि आपके पास सिर्फ बीएससी डिग्री है, मान लो बीएससी डिग्री भी नहीं है, आप बीएससी कर रहे हो, आज के आज सीवी बनाओ। सीवी बनाओ, सीवी के अंदर क्या करो, जो भी है आपके पास ऑनेस्टली जो भी है उतना ही डाल दो, ठीक है। उसकी लाइन वन लिख दो कि आई एम वेरी पैशनेट अबाउट टीचिंग। एक दो झूठ भी लिख सकते हो कि मैंने अपने घर के आसपास के बच्चों को पढ़ाया हुआ है, ठीक है। इतना तो आप लिख सकते हो। टीचिंग एक्सपीरियंस के अंदर आप लिख सकते हो कि आई हैव टॉट 50 स्टूडेंट्स, ठीक है। या आप ऐसा लिख सकते हो कि मैंने टीचिंग असिस्टेंट की तरह काम किया यूनिवर्सिटी के अंदर। ये सब चीजों को कोई चेक करने नहीं आ रहा, नो वन कैन चेक दिस। तो मैंने एज अ टीचिंग असिस्टेंट काम किया है, कहां पर, यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो आज से अप्लाई करना शुरू कर दो। एक सीवी बना लो, बस एक बार आपकी सीवी बन गई, 3 वेबसाइट्स पे अकाउंट बन गए, लिंक्डइन, इंडीड और नौकरी.com। फिर आपको जो भी जॉब्स दिख रहे हैं ना जिसमें जीरो एक्सपीरियंस जरूरी है, सब में अप्लाई कर दो। कोई भी जो भी सैलरी है, मान लो 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, जो भी सैलरी है उसको अप्लाई कर दो, ठीक है। सब सब के सब में अप्लाई करो, आज से अप्लाई करना शुरू कर दो, ठीक है। डजेंट मैटर वो आपको इनिशियली 2 आवर लगेंगे सीवी बनाने में, और फिर अप्लाई करने में 10 मिनट लगता है, ठीक है। आपको अगर 10 कंपनीज में अप्लाई करना है तो 10 मिनट लगेंगे, कुछ नहीं करना होता, सिर्फ क्लिक करना होता है, आपकी सीवी ऑटोमेटिकली चली जाती है, ठीक है। सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, तो आज से अप्लाई करना शुरू कर दो, बात खत्म। हो सकता है कोई आपको कॉल कर ही दे, तो उससे आपको क्या है, पता लगेगा चीजों का कि कैसे कॉल आता है, क्या होता है। अगर आप इस टाइम पे जॉब लेने की सिचुएशन में नहीं भी हो, फिर भी आप कॉल वॉल करो, उनसे बात करो कि हाँ सर मैं कर सकता हूँ, मैं ये इस दिन से ज्वाइन कर सकता हूँ, या ये वो, एक दो टेस्ट दे दो, ठीक है। जाओ कहीं भी नहीं, ऑफलाइन कहीं भी जाकर टेस्ट मत देना अभी, अगर आप नहीं हो कंडीशन में जॉब के लेने की, अभी आप पढ़ाई कर रहे हो या जो भी है। लेकिन आप ऑनलाइन जो भी टेस्ट हो रहे हैं दे सकते हो, क्या क्या नुकसान है उसमें। तो आज से अप्लाई करना बहुत जरूरी है। आज ही रात सीवी बनाकर अप्लाई करना शुरू कर दो, अगर आप इस कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत सोच रहे हो। नहीं भी सोच रहे, आप थोड़ा सा एक्सप्लोर ही करना चाहते हो कि देखते हैं क्या है, तब भी आप ये काम, अप्लाई करने वाला काम तो कर ही सकते हो। ये 4 चीजें हैं। सीवी स्ट्रॉन्ग करना, सीवी कैसे स्ट्रॉन्ग होगी, एकेडमिक्स प्लस ऑनलाइन प्रेजेंस। सीवी सिलेक्ट होने के बाद आपका मोस्ट प्रोबेबली टेस्ट हो सकता है, बहुत केसेस में होता ही है टेस्ट। टेस्ट कैसे क्वालिफाई होगा, अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अब आप ये मत सोच कर चलिए कि आप, अगर आप आईआईटी से भी हैं या कोई भी अच्छी भी जगह से हैं, कि आप बिना पढ़े ही अच्छा कर देंगे, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा मिथ होगा। या तो आपने पढ़ाया हुआ है, मैंने 1 से 3 साल पढ़ाया हुआ है जेएम वालों को, तो मैंने तो कोई दिशा सॉल्व नहीं की, मैंने कुछ सॉल्व नहीं किया था। और आज भी जब मैं पढ़ाने जाता हूँ, मैं कुछ कुछ भी लेकर नहीं जाता हूँ, मुझे पता होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या है, और मैं इस बुक को, किसी भी क्वेश्चन को रैंडमली सॉल्व कर सकता हूँ। मैं इसके डाउट क्लास लेता हूँ, बच्चे रैंडमली पूछते हैं, रैंडमली मैं क्लास में इसको सॉल्व कर देता हूँ। या तो आपने इतना पढ़ाया हुआ है, 1 2 साल 3 साल आपने बहुत से फिजिक्स के एग्जाम्स दिए हुए हैं कि आपको एक्सपीरियंस है कि कैसे फिजिक्स सॉल्व होती है, फिर अलग बात है। लेकिन अगर आपको नहीं है, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि कम से कम एक किताब तो कर ही लीजिए, क्योंकि ये करियर की बात है। आपको कोई 1 लाख रुपए महीना दे रहा है, तो थोड़ा तो टाइम आप उसको दे सकते हो, ठीक है। या ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स हैं इंडस्ट्री में आने के लिए। सैलरीज मैंने डिस्कस कर दी। इसके बाद बात आती है लाइफस्टाइल की, कि क्या लाइफस्टाइल होता है, क्या एक
टीचर के दिन का दिनचर्या होती है, क्या आपको मिलेगा इस इंडस्ट्री में? ठीक है, कितनी रिस्पेक्ट मिलेगी या कितना सेक्रीफाइसेस या कितने डिसएडवांटेजेस मिलेंगे? तो लाइफस्टाइल ऐसा शुरू होता है कि मैं अपना लाइफस्टाइल बताऊंगा, बाकी ओवरऑल यही रहता है लगभग। तो मेरा पहला क्लास 9 बजे होता है, 9 AM। ठीक है, 9 AM पे मेरा पहला क्लास होता है, किनके साथ होता है? जेई स्टूडेंट्स के साथ, जो कि अभी 10th करके 11th में आए हैं, जस्ट उनकी नई नई एडमिशन हुई है, बच्चे हैं। आप समझ सकते हो कि 10th के बच्चे हैं जिनका अभी बोर्ड का रिजल्ट भी नहीं आया। ठीक है, इतने बच्चे हैं। उसके बाद मेरा एक 10 से 11, 11 नहीं, 11-15 बोल सकते हो आप। फिर मेरा अगला बैच होता है 11-15 से नहीं, सॉरी सॉरी, 9 से मेरा क्लास होती है, 9 से 10-15। ठीक है, फिर 10-15 से 11-15, ये भी मेरा कौन सा बैच है? एक और जेई का बैच। ठीक है, ये भी कौन है? जो 11 से 10 से 11 में आए हैं। ठीक है, फिर मेरा एक और बैच होता है 11-15 से 12-15, ये मेरा नीट वाला बैच है, जो 10 से 11th में अभी आए हैं। ठीक है, ये 10 से 11th में जो अभी आए हैं। फिर हमारा थोड़ा ब्रेक होता है, 3 क्लासेस के बाद थोड़ा ब्रेक मिलता है। आप ये शेड्यूल चेंज भी करवा सकते हो, आप इंस्टीट्यूट वालों के साथ बात करो कि मैं इस टाइम कंफर्टेबल हूँ, तो इतना आप टीचर हो वहां पर, आपकी सुनी जाती है। ठीक है, मैंने खुद ही ये शेड्यूल रखा हुआ है ताकि मैं मुझे मेरा जो आफ्टरनून जो है फ्री हो जाए। ठीक है, मैंने बैक टू बैक क्लासेस इसलिए रखे हैं क्योंकि मुझे 2 क्लासेस के बीच में खाली बैठना पसंद नहीं है, क्योंकि आप एक पहली क्लास के बाद आप फ्लो में आ जाते हो, एक पहले 10 मिनट पढ़ाने के बाद आप फ्लो में आ जाते हो, फिर आपका फ्लो टूटे, फिर आप फ्लो शुरू करो, फिर फ्लो टूटे, फिर फ्लो शुरू करो, तो आप ऐसा नहीं चाहते। तो मैंने बैक टू बैक क्लासेस खुद से रखे हुए हैं, तो आप ऐसा मत समझो कि ये आपसे मजदूरी करवाई जा रही है, आपके ऊपर होता है, आप चेंज भी करवा सकते हो। ठीक है, कुछ टीचर्स ने बीच में आधे आधे घंटे का ब्रेक रखा हुआ है, तो आपके ऊपर है, आपकी क्या एज है। मैं यंग एज में हूँ, मैं थकता नहीं हूँ, तो मैं इस ऐसे करता हूँ। जो सीनियर टीचर्स हैं वो थक जाते हैं, तो वो आधे आधे घंटे का ब्रेक लेते हैं। ठीक है, अब लंच मुझे वहीं इंस्टीट्यूट में मिल जाता है, मैं लंच कर लेता हूँ, अच्छा खासा लंच होता है, जो बच्चे खाते हैं मैं भी उनके साथ बढ़िया खाता हूँ, बैठकर बातें होती हैं बच्चों के साथ। ठीक है, बच्चे अपनी बताते हैं दुख दर्द पीड़ा, आपको सॉल्व करनी है, आप उनके मेंटर हो, वो आपको भगवान की तरह देख रहे होते हैं। ठीक है, आपको उनको एक डायरेक्शन दिखानी होती है। ठीक है, और लंच के टाइम में वो अच्छा टाइम होता है उनसे ऑफ द टॉपिक बात करनी, ताकि आपको अगर उनके साथ इंटरेक्ट करना है तो अच्छा टाइम है। उसके बाद मेरा 12:45 पे एक बैच शुरू होता है, जो कि मेरा बैच है जेई एडवांस। ये इंस्टीट्यूट के सबसे बढ़िया स्टूडेंट्स हैं, जिनको आप बोल सकते हो कि बेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, जिनको अलग से करके एक बैच बनाया गया है। ये जेई एडवांस का बैच है, जिसके अंदर मैं फिजिक्स लेता हूँ एज अ फुल फैकल्टी, कोई डाउट नहीं, पूरा फैकल्टी एज अ फुल फिजिक्स फैकल्टी आई गो एंड टेक दिस क्लास। बहुत ही बढ़िया क्लास रहती है, क्योंकि हर स्टूडेंट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पढ़ने वाला है, उनको अच्छी खासी 11th के उनके कंसेप्ट बने हुए हैं। तो ये क्लास होती है 12th जेई एडवांस के लिए, ये ऑलरेडी 11th कर चुके हैं और 12th में अब आए हैं, तो इनके साथ एक साल काम करके इनका रैंक लेकर आना है। ठीक है, तो ये 4 बैचेस अभी मैं ले रहा हूँ, बैचेस इधर उधर चेंजेस होते रहते हैं, तो ये लाइफ स्टाइल होता है। इसके बाद में आपका शाम में अगर आप फ्री हो गए, जैसे आप 2 बजे तक फ्री हो जाएंगे, तो आप 2 से 3 1 घंटा रुक सकते हो डाउट्स के लिए। ठीक है, नहीं भी रुकना तो मत रुको, लेकिन डाउट्स के लिए रुक सकते हो। यूजुअली ऐसा ही होता है, एक आध घंटा दोपहर में आपको रुकने के लिए बोलते हैं कि डाउट्स। मैक्स टू मैक्स आप 4 बजे तक फ्री हो जाते हो, 4 बजे के बाद आप घर आओ, कुछ भी करो, आपकी लाइफ है। ठीक है, तो आप आपका वर्किंग आवर्स जो है वो कंफर्टेबल होता है। कभी भी कोई भी इंस्टीट्यूट 4 बजे के बाद रुकने के लिए नहीं बोलता, 4 5 6, उसके बाद तो वैसे भी स्टूडेंट्स भी घर चले जाते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 6 होगा, अगर आपका दिन लेट स्टार्ट हो रहा है तो 6 बजे तक रुकना पड़ेगा। मेरा 9 बजे शुरू हो जाता है, तो 4 बजे तक मैं फ्री हो जाता हूँ, 4 भी क्या, 3 बजे तक मैं फ्री हो जाता हूँ। 6 6 आवर्स, 6 से 7 घंटे काम करना होता है बस। और मुझे ये काम लगता ही नहीं है, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि मैं 6 7 घंटे काम करके आऊँ, इतना मजा आता है स्टूडेंट्स के साथ। अगर आपको टीचिंग पसंद है तो आपको तो बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि आपको रोज नई एग्जांपल देनी है, आपको रोज नया टॉपिक समझाना है, और आपके पास फुल फ्रीडम है, आपको कुछ आप उसको किसी भी तरह से समझा सकते हो, और आपके सामने बैठे हुए हैं बच्चे, आपको पता चल रहा है कि उनको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो आपको एक और एग्जांपल देनी है, कुछ और रियल लाइफ से कनेक्ट करना है। जब बच्चे हंसते हैं, जब बच्चों को समझ आता है, तो इट इज अ गुड फीलिंग। तो वो आपको एज अ रोल मॉडल देख रहे हैं, अनटिल अनलेस कि आप अच्छा पढ़ा रहे हैं।
अगर आप बोरिंग पढ़ा रहे हैं, आप मुँह में ही बोल रहे हैं, आपकी आवाज़ निकलती नहीं है या कुछ भी है, आप इंट्रोवर्ट हैं, आप खुद ही डरे हुए हैं, तो फिर बच्चे भी आपकी क्लास को एन्जॉय नहीं करेंगे, ठीक है? तो आप अगर अच्छे टीचर हैं या पढ़ा सकते हैं, तो स्टूडेंट्स विल लव और आपको क्लासेस में बहुत मज़ा आएगा। मुझे तो बहुत मज़ा आता है। 4-4 आवर मैं पढ़ाता हूँ, मज़ा आता है एकदम इतना आई फ़ील कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है? कि एकदम स्टूडेंट्स के साथ जो जाकर लाइफ़स्टाइल की बात करें तो इतना ये वर्किंग आवर्स हैं, सैलरी है आपके पास, आप उसके बाद कुछ भी कर सकते हैं। किसी भी शहर में अगर आपको रहना है, मुझे लगता है कि अगर आप किसी भी शहर में रहना है, तो आपको मैक्सिमम 30,000 रुपए पर महीना चाहिए। दिस इज़ अ मैक्सिमम नंबर। अगर आपको फुल एसी, रेफ्रिजरेटर, अच्छा खाना, गुड फूड, ओके, सब फैसिलिटीज़ के साथ रहना है, तो 30,000 रुपए ही चाहिए आप। अगर आप मुंबई, दिल्ली की बात छोड़ दो, सिर्फ मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद ये जो बहुत टॉप शहर हैं, इनको छोड़ दो। अगर मैं नागपुर, नोएडा, नोएडा भी महँगा ही है वैसे, नागपुर या अलग जो अलग-अलग शहर हैं, छोटे शहर हैं, कोटा हो गया, इनमें जो अगर आपको रहना है तो 30,000 रुपए बहुत ज़्यादा होते हैं। मुझे लगता है कि 12 से 15,000 में आपको घर मिल जाएगा रेंट पे, फुली फर्निश्ड घर मिल जाएगा 12 से 15 में। बाकी आप कितना ही खा लोगे, कितना खा लोगे, ठीक है? रोज़ का अगर आप ₹500 भी खर्च करते हो खाने-पीने पे और बाकी खर्चों पे, तो आपका 15,000 रुपए खर्च होंगे। तो अगर आप 15,000 खर्च रोज़ के ₹500 बहुत ज़्यादा होते हैं एक इंसान के लिए, समझ के चलिए। अगर आप किचन में भी सामान लेकर आ रहे हो, आप बाहर से भी खा रहे हो 2 टाइम, 3 टाइम, तो ₹500 बहुत ज़्यादा होते हैं रोज़ के, ठीक है? और 15,000 और लग जाएँगे, तो टोटल आपका 30,000 का खर्चा हो जाएगा, ठीक है? बस, इससे ऊपर आपकी जो भी सैलरी है वो आपकी बचेगी, इनिशियली तो बचेगी। जब तक आपकी शादी नहीं हो रही, तब तक तो आपके पैसे बचेंगे, ठीक है? तो ये आपका लाइफ़स्टाइल रहता है फाइनेंशियली। रिस्पेक्टफुली स्टूडेंट्स के अंदर आपकी रिस्पेक्ट होती है, लेकिन एज़ अ फैकल्टी रिस्पेक्ट बनाने में थोड़ा-सा टाइम लग सकता है, ठीक है? एज़ अ फैकल्टी सोसाइटी में मैं सब बातें बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, सोसाइटी में और पेयर टीचर्स में। जब आप एकदम करियर स्टार्ट करते हो, ठीक है? अगर तो आपके पास बढ़िया डिग्रीज़ हैं, आईआईटी, आईएससी मतलब आपसे कोई बात कर रहा है, आपने जैसे आईआईटी, आईएससी का नाम लिया, तो वो वहीं पे फ्लैट हो जाता है, उसके बाद बातें बंद हो जाती हैं। लेकिन अगर आप मैं नॉर्मल बात शुरू कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आपको थोड़ा-सा टाइम लग जाता है, ठीक है? थोड़ा-सा 1-2 साल आपको 3 साल लगेंगे एक रिस्पेक्ट बनाने में एज़ अ फैकल्टी भी, कि आपको लोग बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने लग जाएँ, कि हाँ भाई, इसने जो बोला है इसकी बात तो टाल नहीं सकते हम, ठीक है? इसके अलावा स्टूडेंट्स में रिस्पेक्ट बहुत जल्दी बन जाती है। आपको सब सर बोलते हैं या आप ये समझ सकते हैं कि स्टूडेंट्स के अलावा जो आपके साथ में काम करने वाले लोग होते हैं, उनके साथ भी आपका अच्छा रिलेशन होता है, उनके साथ भी आपकी अच्छी रिस्पेक्ट होती है। लेकिन जो आपकी सोसाइटी है, जो आपके रिलेटिव्स हैं, ठीक है? अगर आप उनके बारे में सोचो तो उनको हो सकता है कि यही लगे कि हाँ, कोचिंग टीचर है, क्या है इसमें बड़ी बात, ठीक है? उनको अभी आइडिया नहीं होगा कि क्या किस लेवल पे ये इंडस्ट्री है या क्या है, ना ही आपको उनको बताने की ज़रूरत है। लेकिन उस लेवल पे अगर आप बात करो, अगर आप खासकर राजस्थान वगैरह से हैं, ठीक है? ऐसे एरियाज़ में क्या है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का ज़्यादा प्रचलन है। यूपी में जब तक आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है, आपकी इज़्ज़त नहीं है। तो उस सब कॉन्टेक्स्ट में इतनी इज़्ज़त नहीं मिलेगी मेबी, ठीक है? हो सकता है। लेकिन जो आपका स्टूडेंट्स के बीच में या फिर आपके पेयर फैकल्टी मेंबर्स के बीच में बहुत जल्दी आपकी रिस्पेक्ट बन जाएगी, अगर आप सच में अच्छा पढ़ा रहे हो, ठीक है? तो ये है लाइफ़स्टाइल वाइज़, किस वाइज़? रिस्पेक्ट वाइज़। फाइनेंस वाइज़ मैंने कवर कर दिया, रिस्पेक्ट वाइज़ मैंने कवर कर दिया। इसके अलावा आपको खुद के लिए बहुत टाइम मिलेगा। गुड टाइम फॉर योरसेल्फ। अगर मान लो कि आपके दिमाग में कुछ है अंदर, अब कुछ लोगों के दिमाग में होता है कि मुझे इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और मुझे फाइनेंशियल सोर्स भी चाहिए, तो ये करियर अच्छा हो सकता है, ठीक है? कुछ लोग जैसे यूपीएससी वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं, हो सकता है। कुछ लोगों के अंदर ये जुनून होता है, ठीक है? तो ये करियर अच्छा है आपके लिए। मैं समझता हूँ कि अगर आप एक बार जाएँ, तो एक बार आप 6 बजे तक अगर आपने काम कर लिया, तो उसके बाद आप फ्री हैं, आप कुछ भी करिए। कोई आपको इतना भी लेक्चर प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। होती है, लेकिन इतना भी नहीं होती। आप जाकर आधे घंटे में लेक्चर प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है? या फिर आपके अंदर कोई हॉबी है जो आप करना चाहते हो, ठीक है? हो सकता है आप फ़ोटोग्राफ़ी या कुछ भी हो, बहुत सी हॉबीज़ होती हैं, ठीक है? आप कोई यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हो, अपना ऑनलाइन
खुद से भी पढ़ाना चाहते हो तो आप सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि आपके पास टाइम आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। एक बार आप 3-4 बजे फ्री हो गए, अगर आप घर आकर 2 घंटे सो भी गए तो 6 बजे 7 बजे के बाद आप फ्री हैं। आप कम से कम 5-6 घंटे के लिए फ्री हैं। आप 12-1 बजे 2 बजे भी सोएँ, सुबह आपको 7 बजे 8 बजे उठना है तो आप 1 बजे तक सो जाएँ। 7 घंटे की नींद काफ़ी है। तो आप 6 से 1 बजे तक फ्री हैं एकदम। तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपको जो चाहिए, अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, अगर आप यूट्यूब पे टाइम वेस्ट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। लेकिन आपको अच्छा खासा टाइम अपने लिए मिल जाता है, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर कोई आपको 1 लाख रुपए पर मंथ दे रहा है और साथ में आपको 6 से 7 घंटे भी खुद के लिए मिल रहे हैं, तो आप अपनी जवानी के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है? अगर आपके पास सही में आइडियाज़ हैं तो। ठीक है? क्योंकि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट से ही भी ज़्यादा ही हो। ठीक है? अगर आप 30,000 खर्च करके 70,000 बचा रहे हो, तो 25 साल की उम्र में इतना काफ़ी होता है, मेरे हिसाब से। ठीक है? बाकी सपनों की तो कोई लिमिट नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से इतना काफ़ी होता है। तो 70 के 25 की उम्र में अगर आप बचा पा रहे हो, शादी हो भी जाएगी तो 20-30 हज़ार और खर्चा हो जाएगा, 50 तो तब भी बचेगा, सैलरी भी बढ़ जाएगी तब तक। ठीक है? तो आप समझ के चलिए कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। दूसरा, आपके पास टाइम है अपने लिए, और अगर आपको पढ़ाने में मज़ा आता है, तो आपके लिए इससे बढ़िया करियर तो नहीं होगा, और अगर आपको पढ़ाने में मज़ा नहीं आता, तो आप समझ के चलिए कि इससे घटिया करियर कोई नहीं हो सकता। फिर आप अपने पैर पर इतनी बड़ी कुल्हाड़ी मार रहे हो कि मैं बोलूँगा कि बहुत ही गलत करोगे आप, अगर आपको पढ़ाने में मज़ा नहीं आता। अगर आप अच्छे टीचर नहीं हो लेकिन पढ़ाने में मज़ा आता है, फिर भी अच्छा है, ठीक है? क्योंकि आप फिर वो पढ़ाना आप सीख सकते हो। पढ़ाना सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको मज़ा आता है किसी काम में, तो उस काम को सीखने में 1 साल लगता है ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अगर आपको मज़ा नहीं आता, आप इंट्रोवर्ट किस्म के लोग हैं, अगर आपके पास स्टूडेंट्स आकर बात करते हैं और आपको चुभती है वो चीज़, तो ये चीज़ गलत है। जैसे आपके अंदर ये होना चाहिए कि मुझे कम से कम रोज़ 100 बच्चों से बात करनी है। अगर आपके पास सच में ही ऐसी कोई है अंदर से फीलिंग, तो आप ये करियर में आओ, सब कुछ अच्छा है, अगर आप में ये फीलिंग है। अगर ये नहीं है तो सब कुछ बुरा चलता चला जाएगा। तो दिस वाज़ ऑल अबाउट द कोचिंग इंडस्ट्री सेक्टर। मैंने ऑलमोस्ट सब पार्ट्स को कवर कर दिया है। इसके अलावा अब आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लो, ठीक है? आई थिंक दैट इज़ फ्रॉम माय साइड। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन्स है आफ्टरवर्ड्स, आप अगर ये वीडियो को यूट्यूब पे देखो, तो आप मेरे से टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है? एक तो मेरा टेलीग्राम चैनल है फिजिक्स बाय आर्यन, और आप मुझे पर्सनल भी मैसेज कर सकते हो 9501976811 पर, ठीक है? टेलीग्राम पर। आई विल ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल। लास्ट 2 से 3 सालों में मैंने लगभग 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया है, मेरी ही एज के लगभग। तो अगर आपको कोई डाउट आता है तो आई विल हैप्पी टू हेल्प यू, ठीक है? तो दिस वाज़ फ्रॉम माय साइड। नाउ आई एम ओपन फॉर योर क्वेश्चंस। आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग हियर। नाउ यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस फ्रॉम हियर।